Hello students, good morning. How are you? I think you fine at your home with your family and take care, be safe. Today we are going to start endocrine system. In previous video I tell you the central nervous system. Central nervous system consists of two parts, brain and spinal cord, together they are nerves. Central nervous system is the most important system which controls your body by different neurons, and I tell you about neurons. What is the neurons? These neurons helps the controls and coordination hormonal and chemically on our body. Endocrine system works with endocrine system is such a system which along with the nervous system establishes coordination between various cellular activities of the body. The nervous system cannot keep long time controls over all the cellular activities, therefore continued long term regulation with endocrinal system. So today's we are going to know about endocrinal system. Endocrinal system consists of many types of glands in which present in our body. These glands secretes a chemical substance called hormones. These hormones reaches the aim place and works. Different type of endocrine glands are present in our body from our head to abdominal cavity. Endocrine glands secretes their secretion directly into the bloodstream. So we can say that endocrine glands are ductless. These are no tubules, no vessels to secretion for secretion. So these ductless glands which secrete their secretion into directly bloodstream are called endocrine glands, and these glands form a system which is called endocrinal system. एंडोक्राइनल सिस्टम जो होता है इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और आपकी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनसे एक केमिकल सब्सटेंस निकलता है. उस केमिकल सब्सटेंस को बोला जाता है हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर. दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, क्योंकि ये जो हार्मोन्स जो होते हैं ये आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचकर अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं, और हम ये देखेंगे कि कौन सी ग्लैंड किस प्लेस पर प्रेजेंट है, और वहाँ से वो हार्मोन्स रिलीज होगा और रिलीज होकर आपकी बॉडी के किस पार्ट पर जाकर काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी ग्लैंड प्रेजेंट इन योर हेड and their working places is in abdominal cavity, then this gland secrete its hormones into directly bloodstream, and blood reaches the abdominal cavity, and hormone also reach with blood and works. तो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनसे जो निकलने वाला कोई भी सीक्रेशन है उसको ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की नलिकाएं यानी कि डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. तो डक्टलेस ग्लैंड जो होती है वो क्या कहलाएंगे? एंडोक्राइनल ग्लैंड्स कहलाएंगी. ये एंडोक्राइनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो लगभग 8 या 10 टाइप्स की होती हैं. वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और आपकी बॉडी में वेरियस फंक्शंस को में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर endocrinal system. Okay,
व्हाट इज द एंडोक्राइनल सिस्टम? तो मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं एंडोक्राइनल सिस्टम। एंडोक्राइनल सिस्टम में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिफाइन करना पड़ेगा और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो आपको बताएंगी कि ये सब मिलकर बनाती है क्या, एक सिस्टम, जिसको आप क्या बोलेंगे, एंडोक्राइनल सिस्टम। तो यहाँ पर एंडोक्राइनल सिस्टम की जगह में डायरेक्टली आपको नोट कर सकता हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही एक सिस्टम फॉर्म करती हैं। नीचे में एक लाइन में लिख दूंगा उसको कि किस तरह से ये सिस्टम फॉर्म करती है। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स को यहाँ पर डिफाइन करोगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? तो देखो, द ग्लैंड्स विच वर्क्स थ्रू द एंडोक्राइन द सिस्टम, सीधे मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। द ग्लैंड्स विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट हैज नो डक्ट्स। तो नोट करेंगे द ductless gland, the ductless gland which secrete their secretions directly into the blood stream. The ductless gland which secrete their secretion directly into the blood stream is called endocrine glands. Is called एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पे मैं एक लाइन में नोट कर देता हूँ, एंडोक्राइनल सिस्टम वर्क्स थ्रू, एंडोक्राइनल जो सिस्टम होता है वो किसके थ्रू वर्क करता है, वर्क्स थ्रू द एंडोक्राइन ग्लैंड, बस वर्क थ्रू द एंडोक्राइनल या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स secrete, these gland secrete a chemical substance. These gland secrete a chemical substance, secrete a chemical substance called hormone. These hormones are also known as केमिकल मैसेंजर। इन हार्मोन्स को हम किस नाम से भी जान सकते हैं, केमिकल मैसेंजर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं।
तो नीचे एक लाइन में लिख देते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी एज फॉलोज, जो निम्नलिखित हैं, एज फॉलोज। ठीक है ना। आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, और उन सबको हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक एक ग्लैंड को लेंगे और उस ग्लैंड को हम देखेंगे कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट होती है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है और इस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। मेन चीज़ हमको ध्यान रखनी है, प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड, हार्मोन्स ऑफ ग्लैंड एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन। इफ एनी डिजीज ड्यू टू लैक और एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस हार्मोन मे बी रिटन हियर, अगर इनकी कमी से किसी भी प्रकार का की कोई डिजीज होती है तो उसको भी हमको यहाँ पर क्या करना है, नोट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो नंबर 1 देखता हूँ, फर्स्ट पे मैं लिख रहा हूँ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी ग्लैंड है बच्चों, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में मैंने जब ब्रेन की स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन की थी तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस प्रेजेंट इन योर फोरब्रेन इन द पार्ट ऑफ डायनसेफेलन। डायनसेफेलन पार्ट में प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और यह डायनसेफेलन पार्ट किसका होता है, फोरब्रेन का होता है। क्योंकि आप लोग ध्यान कीजिए प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग, योर फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस इज द सेंटर ऑफ हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, टेम्परेचर। ओके, ध्यान आ गया। तो अब हम नोट करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। लिखो, दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलन। दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलन पार्ट। किसका है डायनसेफेलन पार्ट, बताओ, ब्रैकेट में नोट कर दूं, फॉर ब्रेन। किसका है, फॉर ब्रेन का। ठीक है ना। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड कि पीयूष ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इट मेनली रेगुलेट्स द हार्मोन प्रोडक्शन। इट मेनली regulates the hormone production and secretion by pituitary gland. Secretion by पीयूष ग्लैंड। देखो, पीयूष ग्लैंड से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और सीक्रेट होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसका हो गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का हो गया। अब पीयूष ग्लैंड को आप लोग ठीक से जानते हो, हम पीयूष ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। अब मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाली एक ग्लैंड और हो गई, तो इस ग्लैंड को आप क्या बोलोगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स।
इसका नेम क्या हो सकता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस ग्लैंड एल्सो कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड होती है ये 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है। कितने हार्मोन सीक्रेट करती है? 2 प्रकार के। तो नोट करेंगे, 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन। कितने टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है? 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड। अब देखो 2 टाइप्स हार्मोन कौन कौन से हैं? तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट इसका हार्मोन है। फर्स्ट हार्मोन का नाम है भाई साहब इनहिबिटरी हार्मोन्स। इनहिबिटरी BITORY इनहिबिटरी हार्मोन्स। ये जो इनहिबिटरी हार्मोन्स जो होते हैं ये इनका क्या फंक्शन होता है? इनहिबिटरी जो हार्मोन्स होते हैं ये पीयूष ग्लैंड से जो प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स हैं ना उनको कंट्रोल करते हैं, कहीं एक्सेस अमाउंट में ये निकल ना आए। तो ये उनका क्या करते हैं? उनको इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट का मतलब उनका विरोध करते हैं, यानी कि उनको अधिक सीक्रेट होने से रोकते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? विच इनहिबिट्स द हार्मोन्स प्रोडक्शन, विच इनहिबिट्स द हार्मोन प्रोडक्शन बाय द हार्मोन प्रोडक्शन बाय द किसके द्वारा? पीयूष ग्लैंड। यानी कि पीयूष ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोनों का ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं, उनको सीक्रेट होने से रोकते हैं। क्योंकि पीयूष ग्लैंड से हार्मोन्स का एक ग्रुप सीक्रेट होता है, और अगर वो हार्मोन्स का ग्रुप सीक्रेट होता ही रहेगा तो आपकी बॉडी में ना एक्सट्रीमली चेंजेस आ जाएंगे, यानी अचानक से बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है ये पीयूष ग्लैंड के जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन पर अपना क्या रखती है? कंट्रोल रखती है। अब इस कंट्रोल को रखने के लिए हाइपोथैलेमस हार्मोन जो सीक्रेट करती है उसको बोलते हैं हम इनहिबिटरी हार्मोन्स। अब इसने तो उनके हार्मोन्स, पीयूष ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल कर दिया, यानी कि उनको सीक्रेट होने से इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। अब इसका हाइपोथैलेमस का दूसरा हार्मोन कौन सा होता है? दूसरा हार्मोन का इसका जो नाम होता है वो होता है रिलीजिंग हार्मोन। मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरे हार्मोन का नाम क्या हो गया? रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? रिलीजिंग जो हार्मोन्स होते हैं वो पीयूष ग्लैंड को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए क्या करते हैं? रेडी करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको तैयार करते हैं कि वो हार्मोन सीक्रेट करे। तो यहां पर सेकंड वाला बी में नोट कर रहा हूं, रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं? ठीक है ना। विच इंड्यूस द पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर इट, विच इंड्यूस यानी कि प्रेरित करते हैं, इंड्यूस द पिट्यूटरी ग्लैंड
to pituitary gland to release its हार्मोन। यानी कि आप लोग यहां पर ध्यान से देखो, ये जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस का से जो हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स का एक ग्रुप तो इनहिबिटरी हार्मोन्स और दूसरा ग्रुप क्या है, रिलीजिंग हार्मोन्स। इनहिबिटरी हार्मोन्स तो क्या करेगा, पीयूष ग्लैंड को हार्मोन सीक्रेट करने से इनहिबिट करेगा, यानी कि उसको रोकेगा। और दूसरा वाला जो है वो इसको इंड्यूस करेगा कि ये हार्मोन क्या करे, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करने का काम किसका हो गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का हो गया। ठीक है ना, इसलिए हाइपोथैलेमस को मैंने यहां पर लिखा है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या लिखा है मैंने, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में लिखते हैं हम। हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है, नेक्स्ट ग्लैंड पीयूष ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी लिख सकते हो आप लोग, और पीयूष लिख सकते हो, पीयूष, कोई सा भी नाम लिख सकते हैं आप लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड लिख सकते हो, पीयूष ग्लैंड लिख सकते हो। ठीक है ना। पीयूष ग्लैंड कहाँ पर होती है बताओ, ये भी आपके ब्रेन में होती है। ये आपका जो ब्रेन का लोअर पोर्शन होता है हाइपोथैलेमस के नीचे है, हाइपोथैलेमस के पास में ये प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द लोअर पोर्शन, दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द lower portion of the brain near the हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में। क्योंकि मैंने ब्रेन की स्ट्रक्चर जब आपको बनाई थी तो वहाँ पर मैंने हाइपोथैलेमस भी शो किया था, और वहाँ पर हमने पीयूष ग्लैंड को भी शो किया था, और दोनों एक दूसरे के नज़दीक थी। अब ये जो पीयूष ग्लैंड होती है, इस पीयूष ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पीयूष ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, इट इज एल्सो कॉल्ड, इसको और क्या कह सकते हो आप, मास्टर ग्लैंड। इसको हम और क्या कह सकते हैं, मास्टर ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इस ग्लैंड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में। देखो पहला है एडिनो हाइपोफाइसिस, पहला पार्ट का नाम क्या हो गया, एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरा पार्ट क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया किसको, पीयूष ग्लैंड को, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखो एडिनो हाइपोफाइसिस जो होता है वो तो पीयूष ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट होता है, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है वो इस पीयूष ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो मैं इसको नीचे से इरेज करता हूँ, और इसमें हमको यहाँ पर शो करना पड़ेगा एंटीरियर पार्ट ऑफ पीयूष ग्लैंड इज एडिनो हाइपोफाइसिस, while posterior part of पीयूष ग्लैंड इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है ना।
तो यहाँ पर हमको नोट करना पड़ेगा द एंटीरियर पार्ट ऑफ पीयूष ग्लैंड is called adenohypophysis, while posterior part is called neurohypophysis. ठीक है ना, ये हमको ध्यान रखेंगे। इसका जो एंटीरियर पार्ट का मतलब होता है अगला वाला जो हिस्सा होता है पीयूष ग्लैंड का, पीयूष ग्लैंड का जो अगला वाला हिस्सा होता है वो तो क्या होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो पिछला वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्लैंड जो होती है, इससे हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं, ठीक है ना, ये हम लिखते हैं। तो पीयूष ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स का एक ग्रुप रिलीज करती है, और हार्मोन के ग्रुप में 4-5 हार्मोन होते हैं, ठीक है ना। तो हम नोट करते हैं, दिस ग्लैंड सीक्रेट मैनी हार्मोन्स लाइक, दिस ग्लैंड secretes many hormones like ऑक्सीटोसिन। कौन कौन से हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। मैं यहाँ पर फर्स्ट में जो हमारा हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट हार्मोन हमारा है ऑक्सीटोसिन। सेकेंडली कॉमा लगा देंगे बीच में, और कॉमा लगा के लिखेंगे ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन। देखो सोमेटोट्रोपिन को आप लोग क्या बोल सकते हो, GH, और GH का मीन्स होता है ग्रोथ हार्मोन। और ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये आपकी बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर आपकी लंबाई कंप्लीट हो रही है या अगर आपकी लंबाई ठीक ठाक है तो इसका सीक्रेशन ठीक ठाक है। अगर आप सामान्य जो लंबाई होती है उससे कम रह जाते हो तो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, और अगर आपकी जो लेंथ है, लंबाई है, जो वो सामान्य से अधिक हो गई है तो इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हुआ है। तो सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन होता है, जिसको क्या बोल सकते हो आप, ग्रोथ हार्मोन। और ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये आपकी बॉडी की जो लेंथ होती है उसको अफेक्ट करता है। ये आपकी बॉडी की लेंथ को अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं वो क्या है, वैसोप्रेसिन, गोनेडोट्रोपिन, और एक और होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक और क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्पेलिंग ठीक कर देता हूं मैं, वैसोप्रेसिन, और लास्ट वन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स का ग्रुप किससे निकलता है, पीयूष ग्लैंड से निकलता है। हार्मोन्स का ये ग्रुप किससे निकलता है, पीयूष ग्लैंड से निकलता है। देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये आपकी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है
ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो स्ट्रेचेबल बॉडी बनाता है। आपकी जो बॉडी होती है उसको कैसी बनाता है? स्ट्रेचेबल। आप ठीक से ईजी वे में इधर उधर घूम सकते हो। तो स्ट्रेच जो होता है वो इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। लेडीज में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा होता है क्योंकि स्ट्रेच उनका ज़्यादा होता है। सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपकी लेंथ ठीक ठाक है तो ये मीडियम यानी कि सामान्य जनरल यानी कि प्रॉपर वे में ये सीक्रेट अगर हो रहा है तो आपकी एक जनरल लेंथ हो सकती है। और अगर इसकी सीक्रेशन कम हो गई तो आपकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, जो लोग बौने रह जाते हैं। और अगर इसका सीक्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आपकी जो हाइट है वो सामान्य से अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। और वैसोप्रेसिन हार्मोन है, ये लेडीज़ के अंदर सीक्रेट होता है जो किसमें? रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? आपके जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स मीन्स गोनेड्स कौन है? आपके पास टेस्टिस है, बॉयज़ के पास टेस्टिस है, गर्ल्स के पास ओवरी है। जो गोनेड्स हैं उनके डेवलपमेंट में अपना ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट वन इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को एक्टिव रखने में हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड ठीक से अपना काम करे और वो ठीक प्रकार से थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करती रहे, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो आपकी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। तो ये थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला या सीक्रेट होने वाला हार्मोन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली बेटा किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की, पीयूष ग्लैंड के बारे में बात कर ली हमने यहाँ पर। पीयूष ग्लैंड के बारे में आपने तो नोट कर लिया सब। इसके बाद थर्ड ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद पीनियल ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। देखो यहाँ पर ध्यान रखना इनकी प्रेजेंस को। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट थी? ब्रेन में। पीयूष ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है? ब्रेन में। पीनियल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है? ये भी कहाँ पर है? ब्रेन के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्रेन के अंदर। ये ग्लैंड जो होती है ये फोरब्रेन के अपर पार्ट में पाई जाती है। तो यहाँ पर नोट करेंगे दिस ग्लैंड फाउंड इन दी अपर पार्ट ऑफ द forebrain. This gland is found. This gland is भूल गए हम यहाँ पे। This gland is found in the upper part of the forebrain. फोरब्रेन के ऊपरी भाग में ये प्रेजेंट होती है और इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन। तो सीधे सीधे लिख देते हैं एंड सीक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। नाम ध्यान रखना, हार्मोन का नाम क्या है? मेलाटोनिन। ग्लैंड कौन सी है? पीनियल। तो पीनियल ग्लैंड का हार्मोन कौन सा हो गया? मेलाटोनिन। और ये जो हार्मोन होता है ये आपके बॉडी को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नोट कर देंगे दिस हार्मोन इज इम्पोर्टेंट। दिस हार्मोन इज important. This hormone is important for the regulation of body. For the regulation of the body internal clock.
यानी कि आपकी शरीर की, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसका है? पीनियल ग्लैंड का। पीनियल ग्लैंड आपकी बॉडी के इंटरनल क्लॉक को, यानी कि डेली जो आपका रूटीन वर्क होता है, उस रूटीन वर्क में जो रेगुलेशन का काम करना होता है, उस रेगुलेशन के काम को करती है आपकी पीनियल ग्लैंड। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ तक जो 3 ग्लैंड्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये तीनों जो ग्लैंड होती हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं भैया? ब्रेन के अंदर। कहाँ पर प्रेजेंट है? ब्रेन के अंदर। तो अब हम 4th ग्लैंड की बात करते हैं। 4th ग्लैंड कौन सी होती है वो देखते हैं हम, क्योंकि हम देखो किस तरह से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन में, सेकंड ब्रेन में, हाइपोथैलेमस फॉर ब्रेन में, डायनसेफेलिन पार्ट में, पीयूष ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस के नियर है, फॉर ब्रेन में ही। ठीक है ना। और थर्ड जो ग्लैंड है वो भी क्या है? आपका फॉर ब्रेन का जो अपर पार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट है पीनियल। तो आपका जो फॉर ब्रेन है उसके अंदर 3 ग्लैंड्स हो गई। इस तरह से ध्यान रखना। फॉर ब्रेन में कितनी ग्लैंड है? 3। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पीयूष एंड पीनियल। ठीक है ना। अब ब्रेन से नीचे आ जाओ, नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे आएंगे आप नेक में, थ्रॉट रीजन में। अब इस थ्रॉट रीजन में आपकी जो रेस्पिरेटरी कैनाल है, इस रेस्पिरेटरी ट्यूब के बोथ साइड में आपके इंग्लिश का वर्ड होता है एच शेप्ड में एक यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? थायराइड ग्लैंड। क्या बोलेंगे हम उसको? थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो 4th ग्लैंड में यहाँ पर नोट करने जा रहा हूँ, ऊपर से इसको मैं इरेज करता हूँ। और 4th ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना। चौथी हमारे पास जो ग्लैंड है वो कौन सी है? थायराइड। थायराइड ग्लैंड आपके कहाँ पर प्रेजेंट है? नेक रीजन में, थ्रॉट रीजन बोल सकते हैं, नेक में। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का नाम मैंने अभी बोला है, ध्यान हो तो, थायरॉक्सिन हार्मोन। और जो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी के सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर ये हेल्प करने वाला हार्मोन होता है। ठीक है। तो अब हम नोट कर रहे हैं यहाँ पर भाई साहब 4th ग्लैंड, और हमारी 4th ग्लैंड है थायराइड। थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है? दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रैकिया। आपकी जो ट्रैकिया होती है, रेस्पिरेटरी कैनाल बोल सकते हैं उसको। दिस ग्लैंड इज situated both sides of the trachea, both sides of the trachea। ट्रैकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट है। किसकी शेप में? इन द शेप ऑफ इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड कौन सा? एच, कैपिटल एच। वर्ड की शेप में आपकी जो ट्रैकिया है उसके दोनों साइड्स के अंदर ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? दिस ग्लैंड secretes thyroxine।
thyroxine hormone. This gland secretes thyroxine hormone. और ये थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? विच रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, विच रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। दैट आर बेस्ड अपॉन द हार्मोन, दैट आर बेस्ड अपॉन द हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन के ऊपर जो बेस्ड होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का। अब देखो, थायरोक्सिन हार्मोन एक तो काम कर रहा है क्या? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को काम कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। और इस हार्मोन का और काम और होते हैं, 2 काम 3 काम करता है ये हार्मोन। दूसरा काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड आरबीसी के फॉर्मेशन में रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को बनाने में भी ये हेल्प करता है। और किसको और किस में काम करता है? एंड एल्सो regulates and also regulates protein, carbohydrates and fats metabolism। 3 काम है क्या? पहला काम तो क्या हो गया? पहला काम हो गया रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। सेलुलर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम हो गया थायरोक्सिन का। दूसरा काम क्या हो गया? आरबीसी के फॉर्मेशन का काम हो गया। ठीक है ना, इसमें हेल्प करेगा। तीसरा काम क्या हो गया? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ कि जैसे थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत से लोगों को, जिसको आप बोलते हैं थायराइड की प्रॉब्लम। उस थायराइड की प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है? ये जो हार्मोन होता है ये इर्रेगुलर हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये इर्रेगुलर हो जाता है, और इर्रेगुलर जब हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर न्यू ब्लड फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि इस हार्मोन के द्वारा ही आरबीसी बनती है। न्यू ब्लड का जो फॉर्मेशन होना चाहिए उतनी अमाउंट में नहीं हो पाता है। दूसरा काम, आपकी जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है वो स्लो हो जाएंगी, यानी कि आपकी जो बॉडी ग्रोथ है, जो जिस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होनी चाहिए सेलुलर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, वो नहीं हो पाती है। और थर्ड इसका जो काम होता है कि आपने जो फूड को इनटेक किया है, आप जो खाना खा रहे हो उस खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन होगा, और डाइजेशन में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो निकलने वाली है उस फूड से, उनका जो मेटाबॉलिक प्रोजेक्शन है वो ठीक ढंग से वो एक रूटीन में नहीं हो पाता है। यानी कि इनका डाइजेशन तो हो गया, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन के बाद आपकी बॉडी के लिए जो जहाँ पर काम करना चाहिए था इनको, वहाँ पर वो काम नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो, यानी कि जिसके कहते हैं कि ये उसकी जो बॉडी होती है वो थिन हो जाती है, यानी कि सूख जाती है शरीर, या तो सूख जाता है, या फिर इनके बिल्कुल ही काम करने के कारण वो फैट जो होती है वो आपकी बॉडी की जो स्किन है उसके नीचे क्या हो जाएगी? लेयर्स के रूप में जमा होने लग जाएगी। तो या फिर आपका बॉडी का जो वेट होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आती है किसमें? थायराइड ग्लैंड की जब समस्या हो जाती है किसी भी व्यक्ति को उसके अंदर। ठीक है ना, तो ये थायराइड ग्लैंड हो गया। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर से जो ये हार्मोन सीक्रेट हुआ है थायरोक्सिन, ये हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए एक मिनरल्स की एसेंशियल्स
एक मिनरल्स एसेंशियल होता है और वो मिनरल कौन सा है? आयोडीन। तो आयोडीन रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की सिंथेसिस करने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन को, और जब आयोडीन की कमी आपके अंदर हो जाती है तो आपको एक डिजीज हो जाती है जिसको क्या बोलोगे आप? गॉइटर। क्या बोलोगे? गॉइटर। तो यहाँ पर नोट करेंगे हम, आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू सीक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए कौन रिक्वायर्ड है? आयोडीन रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। अब अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हार्मोन्स की भी कमी हो जाएगी। द लैक ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। द लैक ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा? रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन में क्या हो जाएगी? डिक्रीजिंग हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी तो क्या होगा? एंड में हो सकता है, में रिजल्ट इन ए डिजीज इज कॉल्ड, ए डिजीज इज कॉल्ड गॉइटर। क्या डिजीज हो जाएगी? गॉइटर। क्या डिजीज हो रही है यहां पर बेटा? गॉइटर डिजीज हो जाती है आपको। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। और आयोडीन की कमी के कारण किसके अंदर कमी आती है? थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर कमी आती है। ठीक है ना। तो ये आपके सामने मैंने थायराइड ग्लैंड को नोट किया है। और अब आप लोग नेक्स्ट ग्लैंड नोट करेंगे। और नेक्स्ट ग्लैंड है हमारे पास, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है? पैराथायराइड। नेक्स्ट वन इज पैराथायराइड। ठीक है ना। पैराथायराइड ग्लैंड फिफ्थ ग्लैंड है आपके पास पैराथायराइड। ये पैराथायराइड जो होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में होती है। ठीक है ना। दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द, नोट करेंगे, दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द पोस्टीरियर, in the posterior part of the thyroid gland. It secretes a hormone called पैराथॉर्मोन। इसके हार्मोन का नाम क्या है? पैराथॉर्मोन। अब ये जो पैराथॉर्मोन हार्मोन होता है इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल होता है ब्लड में उसको कंट्रोल करना। द मेन फंक्शन of this is control the calcium
एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन दी ब्लड। आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को कंट्रोल करने का काम पैराथॉर्मोन का है। अब अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो आपको एक डिजीज होती है। इस हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो आपको एक डिजीज हो जाती है, तो लिखेंगे हम लैक ऑफ दिस हार्मोन cause, lack of this hormone cause tetany, cause lack of this hormone, lack of this hormone may वर्ड और आएगा यहाँ पर एक, may cause tetany। ये टेटेनी डिजीज है, ठीक है ना। ये टेटेनी डिजीज किसकी लैक के कारण होती है? ये होती है पैराथॉर्मोन हार्मोन के कारण। देखो ये हार्मोन का नाम हो गया, आधा इधर है आधा इधर है, ठीक है ना। तो ये हार्मोन्स के नाम को देखिए और डिजीज के नाम को देखिए, तो इस तरह से आप इन दोनों को ध्यान में रख सकते हो। तो बच्चों ये आज आपने देखी हैं 5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट 5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स और रिमेन्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो ये आपका हो जाता है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 1। इसको मैं लिख सकता हूँ पार्ट 1। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें जो रिमेन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम नोट करने वाले हैं। और रिमेन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्योंकि आप सर से लेके हेड से चले हो, हेड में 3 हो गई, फिर नेक पे आ गए, नेक में कितनी हो गई 2, थायराइड एंड पैराथायराइड, 5 ग्लैंड्स हो गए। अब यहाँ से नीचे उतरेंगे हम। तो आपकी बॉडी का जो ये एब्डोमाइनल कैविटी वाला पार्ट होता है, चेस्ट रीजन होता है, चेस्ट रीजन के नीचे एब्डोमाइनल कैविटी है, और इस एब्डोमाइनल कैविटी के अंदर और कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, उनसे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो यहाँ पर हम नोट करने वाले हैं। ओके, तो इनको सबको नोट कीजिए आप। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।